ابرار ہمارے پڑوس میں رہتے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو انہیں اپنی تینوں بیٹیوں سے زیادہ پیارا تھا۔ وہ اچھے عہدے پر کام کر رہے تھے مگر تنخواہ بس اتنی تھی کہ صبر شکر سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ یہ ایسا محکمہ تھا کہ جہاں رشوت کا کوئی کام نہ تھا۔ 4 بچوں کے اخراجات اور دیگر ضروریات پوری کر لینے کے بعد مہینے کے آخری چند دن کچھ تنگی ترشی میں ضرور گزرتے تھے، لیکن اس کمی کو انکل اوور ٹائم کر کے پورا کر لیا کرتے تھے۔ وہ بہت دیانتدار اور اپنی اولاد کا خیال رکھنے والے تھے۔ ان حالات میں بھی انہوں نے اپنے بچوں کی خوشیوں میں کمی نہ آنے دی، خاص طور پر اپنے بیٹے جہانگیر کی ناز برداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ ابرار صاحب کی بچیوں کی شادیاں ہو گئی اور جہانگیر نے بھی FSC میں اتنے اچھے نمبر لے لیے کہ اسے انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ جن دنوں وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، انکل شام کو ایک پرائیویٹ دفتر میں چھپ کر کام کرتے کیونکہ بیٹے کی پڑھائی کے لیے ان کو رقم درکار تھی۔ اس شبینہ روز مہینہ سے وہ بیمار ہو گئے، لیکن بچوں کو انہوں نے اپنی تکلیف کا احساس بھی نہ ہونے دیا۔ جب جہانگیر نے انجینئرنگ پاس کر لی تو والدین خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ ان کو اپنے خوابوں کی تعبیر پوری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ ایک دوست کے توسط سے ان کے صاحبزادے کو ایک بڑے شہر کی فرم میں بہت اچھی تنخواہ پر ملازمت مل گئی۔ سبھی نے ان کو مبارکباد دی۔ انہوں نے سمجھا کہ اب ان کے بہت اچھے دن آ گئے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ جہانگیر نے تنخواہ ملتے ہی والدین کی مشکلات کو بھلا دیا۔ وہ اپنی تنخواہ خود رکھتا، جب ملنے آتا الٹا والدین سے رقم مانگ لیتا۔ یہ بیچارے ادھار کر کے بھی اسے رقم دے دیا کرتے۔ پھر جب بہنوں نے احساس دلایا تو وہ والدین کو خرچہ دینے لگا۔ پہلے وہ ایک ماہ میں 2 بار گھر آتا، ایک دن رہ کر چلا جاتا، اب مہینوں بعد آنے لگا، جس پر اس کے والدین بے حد فکر مند رہنے لگے۔ تب آخرکار صاحب نے کہا کہ اس کی شادی کر دیں، اکیلا پردیس میں رہتا ہے اور تنخواہ بھی کافی ہے، کہیں غلط راستے پر نہ لگ جائے۔ جہانگیر کافی خوبصورت نوجوان تھا، ماں کو اس کی دلہن تلاش کرنے میں دن لگ گئے۔ وہ چاہتے کہ جیسا بیٹا حسین ہے دلہن بھی ویسے ہی ہو۔ ایسا آسان نہ تھا۔ کئی لڑکیاں دیکھیں، کہیں لڑکی کا رنگ سانولا ہوتا، کہیں قادگی چھوٹی ہوتی تو کہیں لکھی پڑھی نہ ہوتی۔ آخر جہانگیر کی چچی نے اس سے کہا، بیٹا تو اب ماں کی پسند کو رہنے دے۔ اس نے شہر کو کھنگال ڈالا اور 10 لڑکیاں دیکھ لیں۔ اگر اس طرح ناز نخرے کرتی رہیں تو تم عمر بھر کنوارے ہی رہ جاؤ گے اور ہماری جٹھانی کو کوئی لڑکی پسند نہیں آئے گی۔ دراصل یہ تمہاری شادی ہی نہیں کرانا چاہتی۔ تو چچی جان پھر آپ ہی میرے لیے کوئی لڑکی دیکھیے، ورنہ میں کسی شہری لڑکی کو پسند کر کے خود ہی شادی کر لوں گا، تو گلہ مت کرنا۔ ہاں بیٹے، یہی تو میں بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ماں کی پسند کو اب رہنے دے اور یہ فریضہ مجھ کو سونپ دے۔ میں ایک ہفتہ میں ہی تیرے لیے چاند سی دلہن ڈھونڈ لوں گی جو پڑھی لکھی خوشحال گھرانے کی قبول صورت ہو۔ ڈر مت، میں کوئی ٹھگنی، ان پڑھ یا بد شکل لڑکی ہرگز نہ لاؤں گی۔ یہ بھی تکبر کے الفاظ تھے، تاہم جہانگیر نے چچی پر بھروسہ کر لیا اور ماں سے کہہ دیا کہ اب آپ کو میرے لیے لڑکی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، آپ زحمت نہ کریں، میری چچی میرا رشتہ کرائیں گی۔ ماں اپنا سا منہ لے کر خاموش ہو بیٹھی اور چچی نے رشتہ مہم تلاش کرنے کی مہم سر کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے 15 دنوں میں رشتہ تلاش کر لیا۔ لڑکی کا نام زہر تھا اور وہ ایک کالج میں لیکچرار تھی۔ جہانگیر کے والدین لڑکی دیکھنے لاہور گئے، جبکہ وہ ملتان کے قریب ایک شہر مظفر گڑھ میں رہتے تھے۔ زہرا کو دیکھا تو دم ساد کر رہ گئے۔ وہ نہ صرف عمر میں زیادہ تھی بلکہ سخت مزاج بھی نظر آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے دور سے آئے مہمانوں کی کچھ زیادہ آؤ بھگت بھی نہ کی۔ انکل ابرار اور ان کی بیوی بد دل ہو گئے، ان کو زہرا ایک آنکھ نہ پائی۔ جہانگیر کے دل میں والدین کی طرف سے غلط فہمی پیدا ہو چکی تھی کہ میرے والدین کمائی کھانے کی خاطر میری شادی نہیں کر رہے۔ جب ماں نے زہرا کے عیب گنوائے تو اس نے کہا، ماں تم حور پری کہاں سے لاؤ گی؟ ہر لڑکی میں آپ کو عیب نظر آتے ہیں، آپ میری شادی ہی نہیں کرانا چاہتی۔ اب میں شادی کروں گا تو چچی کے کہنے سے ہی کروں گا، بس آپ سے بات ختم۔ والدین نے لاکھ سمجھایا کہ لڑکی قبول صورت ہے، ہم کو اعتراض نہیں، مگر وہ عمر میں تم سے کم 6 برس بڑی ہے۔ چلو اس بات کو بھی نظر انداز کرتے، لیکن ان لوگوں میں مہمانداری کا شعور نہیں، بات کرنے کی تمیز نہیں، اور لڑکی نے تو ایسے سخت لہجے میں بات کی جیسے ہم کو دبکا رہی ہو۔ لڑکیاں ایسی تو نہیں ہوتی، یہ میں اس کے عیب تم کو نہیں گنوا رہی بلکہ سمجھا رہی ہوں۔ امی وہ لیکچرار ہے، پڑھی لکھی ہے، اچھا خاصا کما رہی ہے، وہ محکمہ تعلیم ہے، تو اس کو بات چیت کی تمیز کیوں نہ ہوگی؟
बस रहने दीजिए, मैं आप लोगों की नीयत को समझ गया हूँ। आपको खिदमत करने वाली बहू किस्म की नौकरानी जैसी बहू चाहिए। मुझे भी इसे दोगी। अब मैं शादी करूँगा तो ज़ार से ही करूँगा। आप खुश हों या ना खुश, मुझे परवाह नहीं। गर्ज के जहांगीर ने उस रिश्ते को आखिरी समझ लिया। माँ के खलूस पर तो शक किया, लेकिन चच्ची की नीयत को ना समझा। बेशक आंटी से भी गफलत हुई कि खूब से खूब तर की तलाश में कुछ ज़्यादा ही वक्त गिनवा दिया। जब जहांगीर ज़रा से शादी पर इस कदर मुसर हुआ कि माँ बाप से झगड़ने लगा, तो उन्होंने अपने लाडले बेटे के रूबरू हथियार डाल दिए और शादी की इजाज़त दे दी। लड़की की माँ तो बहुत खुश थी कि उनकी लॉटरी निकल आई थी। इतना खूबसूरत और छोटी उम्र का दामाद मिल रहा था, वो भी एक मशहूर कंपनी में इंजीनियर था। खूब भारी तनख्वाह ले रहा था। ज़हरा 2 बहनें थी और उनके 3 भाई थे। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, अब ये उनकी आखिरी लड़की थी। वो ज़्यादा अमीर न थे, मगर अमीरों में रिश्ता करने का बहुत अरमान रखते थे। अंकल अबरार ने उम्र भर कफ़ायत शारी से ज़िंदगी बसर की थी, मगर अपनी जायदाद फरोख्त न की। ये बच्चों के काम आ गई, बेच दी तो फिर ये मकान न बना सकेंगे। उनके 4 बच्चे थे, 4 ही मकान उनके वालिद की तरफ से उनको मिले थे। उनका थोड़ा थोड़ा करके किराया वो लेते और अपने ज़रूरतमंद रिश्तेदारों को किराए पर बिठा रखा था कि वो कम अज़ कम कब्जा तो नहीं करेंगे। बहरहाल अंकल और आंटी बेटे की खुशी की खातिर बहू को खुश खुश ब्याह कर ले आए। उन्होंने कोई जहेज दिया और ना उन्होंने कोई मुतालबा किया। ज़हरा ने आते ही ससुराल में हर किसी को नीची नज़र से देखना शुरू कर दिया। बेशक हर लेक्चरार लड़की ऐसी नहीं होती, लेकिन वो लेक्चरार किया थी, गोया सारी दुनिया उसकी शागिर्द थी। सास ससुर भी सब के उसके शागिर्द थे। वो बड़ों और बुजुर्गों के साथ भी तहक्कुम से बात करती थी। वो अपनी तनख्वाह में से 1 पैसा भी किसी को ना देती थी, बल्कि खामद की तनख्वाह भी अपनी मुट्ठी में रखती थी। ससुराल वालों को अशद ज़रूरत पर भी बहुत थोड़े पैसे नाको चने चिपवा कर देती थी, वो भी उनके बेटे की तनख्वाह से। जहांगीर ने एक रोज़ अपनी माँ और बहन को खूब बुरा भला कहा कि अगर मेरे घर आना है तो अपने इस्तेमाल की चीज़ें साथ लाया करो। मेरी बीवी की चीज़ों को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बीवी को कहा कि अब मेरी बहन या वालिदैन आए तो तुम अपनी चीज़ों को ताले में बंद कर दिया करो। ज़हरा ऐसे ही करती, वो बर्तनों तक को ताले में बंद कर देती है। माँ बेचारी का दिल बहुत ही दुखा। भला वो बेटे के घर पानी का गिलास भी ना उठा पाए तो ऐसे घर जाने की क्या ज़रूरत। इस सलूक से दिल बर्दाश्त होकर आंटी और अंकल ने बेटे के घर जाने से तौबा कर ली। ज़हरा का मिजाज कुछ इस किस्म का था कि अपने मेके में भी उसका रोहब चलता था। उसने भाई से कहकर मियाँ का तबादला मुल्तान की ब्रांच में करवा दिया। एक दिन जहांगीर ने कहा कि मुझे वो औरतें पसंद नहीं जो अपने बाल कटवा लेती हैं, औरत को चाहिए कि वो बुर्का पहने। उसने ये इसलिए कहा कि वो ज़हरा को फैशन के बगैर देखना चाहता था। ज़हरा ने उसके बाद बाल नहीं कटवाए और बुर्का भी ले लिया, लेकिन उसने शौहर की शादीशुदा बहनों से भी उनके घर जाकर कहा कि तुम लोग आइंदा बाल नहीं बनवाओगी और बुर्का लोगी। जब उनके शौहरों ने आकर अंकल अबरार और उनकी बेगम से शिकवा किया कि अपने बेटे से कहो अपनी हिदायत वो अपनी बीवी तक रखे और हमको हमारे अंदाज से रहने दे। आंटी ने दामादों से कहा कि वो बस कहने को हमारी बहू है, वो ना हमको सास ससुर का दर्जा देती है और ना हमसे राब्ता रखती है, जैसे अपनी निंदों से राब्ता नहीं रखना चाहती। लिहाजा आप लोग जहांगीर की बात का बुरा ना मनाएं। ज़हरा ने इस बात पर सास ससुर से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया और जहांगीर जो हफ्ता में एक दिन माँ बाप के पास आ जाता था, उससे कहा कि हमें बड़े शहर चलकर रहना चाहिए ताकि हमारे बच्चे बड़े हो तो उनको अच्छी तालीम के मौके मिलें। उसने शौहर को इतना मजबूर किया कि उसने लाहौर में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली और वालिदैन की तरफ आना जाना तर्क कर दिया। ज़हरा के भाई ने एक बार फिर कोशिश की और जहांगीर का तबादला दोबारा उसी कंपनी में करवा दिया जहां वो लाहौर में पहले काम करता था। ज़हरा ने अपना घर किराए पर उठाया और खुद शौहर के साथ माँ के घर रैश पजीर होगी। बहाना ये किया कि उधर से उसका पुराना कॉलेज जहाँ से वो पहले पढ़ा रही थी नज़दीक है, वो फिर से उसी कॉलेज में पढ़ाने लगी। ज़हरा की माँ खुश थी कि उसकी बेटी और दामाद उसके पास थे और वो उनका खर्चा भी उठा रहे थे। इधर अंकल अबरार उदास और उसकी बीवी बेटे को याद करके रोती थी, जिसने उनको तकरीबन भुला दिया था। जब बीवी माँ के घर आकर शेर हो गई और सालों ने भी जहांगीर को दबाना शुरू कर दिया तो उसे अपनी सबकी महसूस होने लगी और एहसास हुआ कि उसने यहाँ आकर गलती की है। वो वालिदैन के पास छोटे शहर में ठीक था, वहाँ भी उसकी कंपनी की ब्रांच थी और तनख्वाह भी वहीं मिल रही थी, मगर वहाँ काम का दबाव कम था और वालिदैन की कभी तो खैर खबर ले लिया करता था। अब ज़रा अपने मियाँ का ज़रा सा भी ख्याल नहीं रखती थी। सारी तनख्वाह यह कहकर ले लेती कि हम बड़ी सी
कोठी बनवाएगी और थोड़ी सी रकम उसको उसके ज़ाती खर्चे के लिए दे देती ताकि वो अपने वालदैन को कुछ ना भिजवा सके। लिहाजा जहांगीर ने इस अरसे में अपने वालदैन को कुछ कभी ना भेजा। एक बार वो घर आया तो बाप ने कहा, बेटा मैं बीमार रहता हूँ और जायदाद का फैसला अपनी ज़िंदगी में करना चाहता हूँ। जहांगीर ने कहा, ठीक है, आप ऐसा ही कर लें। ज़रा ने फ़ोन किया कि इतने देर वहाँ क्यों रोके, क्या नौकरी की फिक्र नहीं है? जहांगीर ने बताया कि उसने कुछ दिन मजीद छुट्टी ले ली है कि वालिद साहब जायदाद में से उसका हिस्सा उसे दे रहे हैं। ज़रा फौरन ससुराल पहुंची और शोहर से कहा कि तुम्हारी बहनों को तुमसे आधा हिस्सा मिलेगा, लेकिन तुम अकलौते हो और उनकी शादियां अमीर घरानों में हो चुकी हैं। उनको इस थोड़ी सी जायदाद की क्या ज़रूरत है? अपने वालिद से कहो कि वो तमाम जायदाद तुम ही को दे दे। जहांगीर ने बाप से इसरार किया कि आप जिस मकान में रहते हैं वो अपने नाम रहने दें और बाकी तीनों मकानात मुझे दे दें। बाप ने ऐसा करने से इनकार किया तो वो नाराज़ होकर जाने लगा। बाप ने सोचा कि बेटियों को बुलाकर उनसे पूछ लूँ, उस बात पर राजी हो सकती हैं। मेरा बेटा अकलौता है, कभी न कभी बुढ़ापे की मजबूरी को देखकर आखिर हमारी खबरगिरी को आ जाएगा। उसने शादीशुदा बेटियों और दामादों को बुलवाकर मसला उनके सामने रख दिया। दामाद खुशहाल और शरीफ खानदान से थे। उन भले आदमियों ने कहा, अंकल आप हयात हैं और अपनी ज़िंदगी में जो फैसला आपको मुनासिब लगे करें, हमें आपके किसी फैसले पर कोई एतराज़ नहीं होगा। बहनों ने भी कहा कि हमारा अकलौता भाई है, हमें जायदाद से कुछ नहीं चाहिए। बेशक आप अपने बेटे को राज़ी कर लें ताकि ये आपसे रूठ कर ना जाए। अंकल ने वो घर जिसमें रहायश पजीर थे अपने पास रहने दिया कि वालिदैन के बाद तीनों बेटियों को मिलेगा और बाकी मकानात जायदाद जहांगीर को दे दिए। वो जायदाद लिखवा कर खुशी खुशी बीवी के साथ वापस लाहौर चला गया। उसके बाद उसने वालिदैन की कोई खबर ली और ना रुपया पैसा और खत भेजा। वो अब ससुराल में एक बेबस इंसान की तरह रह रहा था। इस दौरान उनके 2 बच्चियां हो चुकी थी। बीवी कॉलेज पढ़ाने जाती थी और सास उनके बच्चों को देखती थी। लिहाजा ज़ारा कहती कि हमको बच्चियों की वजह से अब यहाँ रहना ही है, वरना उनको कौन देखेगा। उन्हीं दिनों अंकल अबरार शदीद बीमार हो गए। उनको रकम की ज़रूरत पड़ी। माँ ने बेटे को फ़ोन किया और खत भी लिखा कि तुम्हारे वालिद बीमार हैं, कुछ रकम भिजवा दो ताकि तुम्हारे वालिद को इलाज के लिए लाहौर लाएं। ज़ारा ने खत को पढ़कर फाड़ दिया और शोहर को ना दिखाया। इस दौरान बेटियों को बाप की खबर बीमारी की खबर होगी। वो अपने शोहरों के हमराह आ गए, बाप को अस्पताल ले गए, इलाज कराया, मगर मौत का वक्त मुकर्रर है सो वो वफात पा गए। उन्होंने भाई को बाप की फौतगी की इतलाह कराई, मगर सालों ने जहांगीर को बार वक्त मतला ना किया और वो बाप का आखिरी दीदार भी ना कर सका। बाद में आकर रोया तो फिर किया कि जो हस्ती उसकी दीद को तरसती हुई कब्र में चली गई वो अब वापस नहीं आ सकती। माँ अब अकेली और बेसहारा रह गई। बेटियां शादीशुदा थी, वो अपने घर चली गई। उन्होंने माँ को साथ ले जाना चाहा, मगर आंटी ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया कि उनको बेटे के मिलने की आस थी। बेटा आया, माँ को ले जाना चाहता था, मगर ज़ारा ने कह दिया कि उनको वही रहने दे, खर्चा भिजवा दिया करो, लाहौर लाने की ज़रूरत नहीं, वरना मैं तलाक ले लूँगी और तुम्हारी बच्चियाँ भी तुमको नहीं दूंगी, तुम उनको देखने को तरस जाओगे। आंटी ने जहांगीर को समझाया, बेटा मेरे तो जानने ज़िंदगी के अब कितने दिन रह गए हैं, मगर तुमने सारी ज़िंदगी गुजारनी है। तुम्हारी बच्चियों को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम बीवी के पास ही रहो, मुझसे मिलने आते रहना, मैं अपने घर में ही ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। इस तरह उन्होंने बेटे को लाहौर भेज दिया और खुद अकेली रहने लगी। 2-4 बार उसके बाद जहांगीर माँ के पास आया। बाद में उसने आना बंद कर दिया, जबकि माँ बेचारी तमाम दिन दरवाजे की समत देखती रहती थी, शायद उसका बेटा आ जाए। बेटे की मोहब्बत से मजबूर होकर आंटी एक बार लाहौर भी गई, लेकिन बहू ने ऐसा सलूक किया कि दूसरे दिन ही लौटते बनी। माँ बिलाकर इंतजार करते करते अल्लाह को प्यारी होगी, न वो अपनी जिंदा आंखों से बेटे को देख सकी और न बेटे ने माँ का आखिरी दीदार किया। दामादों ने आंटी को कब्र में उतारा और बेटियों ने माँ को आखिरी सांसों तक संभाला। पड़ोसी होने के नाते हम भी आंटी को अलविदा कहने गए थे। सभी के आंखों में आंसू थे और लोग कह रहे थे कि बेटी हो या बेटा, खुदा औलाद दे तो नेक दे, वरना बे औलाद ही बने।